آپ جان چکے بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام اراکین کو کل عدالت میں طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اور اس کی پوری سکیم الیکشن کمیشن سے طلب کر لی۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کوئی قانون کم نہیں کر سکتا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اور اس کی پوری سکیم الیکشن کمیشن سے طلب کر لی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں حکومت اپنی شکست کو دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ مریم نواز کی حکومت پر تنقیدی نشتر کہتی ہیں سنی سنائی باتیں نہیں کرتی، وہ بات کرتی ہوں جس کا مصدق کا علم ہوتا ہے۔ پرامن ریلی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عمران خان نے ارب پتی افراد کو ٹکٹ دیا، مسلم لیگ نون نے عام آدمی کو سینٹ ٹکٹ دیا۔ مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید۔ ان کا کہنا تھا کہ وہی بات کرتی ہوں جو مصدقہ ہوتی ہے۔ حکومت اپنی شکست کو دیکھ کر اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ مریم نواز کی حکومت پر تنقیدی نشتر کہتی ہیں سنی سنائی باتیں نہیں کرتی، وہ بات کرتی ہوں جس کا مصدقہ علم ہوتا ہے۔ پرامن ریلی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں سینٹ انتخابات ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ نون لیگ کے وکیل نے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی، جس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر دفاع پرویز خٹک، چیئرمین پیمرا اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جو لوگ ویڈیو سکینڈل میں ملوث ہیں ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کارروائی کی جائے۔ بعد ازاں مسلم لیگ نون کے وکیل جہانگیر جدور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے مرتضی عباسی کی جانب سے درخواست جمع کروائی ہے، جس میں الیکشن کمیشن سے ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو دوسری جانب ویڈیو سکینڈل سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ شہری مزاری کہتی ہیں ویڈیو کے معاملے پر کمیٹی کا اجلاس 17 فروری کو ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق قانون سازی ناگزیر ہے، لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ شہری مزاری نے کہا کہ ویڈیو سکینڈل سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ شہری مزاری کہتی ہیں ویڈیو کے معاملے پر کمیٹی کا اجلاس 17 فروری کو ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق قانون سازی ناگزیر ہے، لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ تو سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر کارکنان کے اعتراض کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت بھی کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر کارکنان کے اعتراض کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی رات گئے کراچی آمد۔ ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کے عہدیداروں سے ملاقات۔ پارٹی عہدیداروں نے سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ کی معاملات کو حل کرنے کی یقین دہانی۔ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے وزیر خارجہ کو تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی رات گئے کراچی آمد۔ ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کے عہدیداروں سے ملاقات۔ پارٹی عہدیداروں نے سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ کی معاملات کو حل کرانے کی یقین دہانی۔
सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल। जनरल नशिस्तों पर 51 टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा, जबकि 23 खवातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 17 से 18 फरवरी तक होगी। कागजात पर अपीलें 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी। 23 फरवरी तक तमाम अपीलों को निपटा दिया जाएगा, जबकि 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 25 फरवरी तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। वाज़िया रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 नशिस्तों के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान है, जबकि पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तों के साथ दूसरी और मुस्लिम लीग नून का 18 सीटों के साथ तीसरी बड़ी जमात बनने का इम्कान है। अब आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात पीटीआई सिंध का फैसल वाकटा को टिकट देने पर एतराज, गवर्नर को खत लिख दिया गया। तहरीक इंसाफ सेंट्रल सिंध रीजन के अहदेदारों ने सेनेट के टिकट के मामले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। हैदराबाद, सक्खर और नवाब शाह के अहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। खत में फैसल वावडा और टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफ आबरो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया गया। अहदेदारों का मौक़िफ़ था कि अगर फैसल वावडा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में आ जाएगी। टेक्नोक्रेट सीट के लिए नामजद सैफुल्ला आबरो पर करप्शन के इल्जामात और नैब केसेस हैं। खत में सेनेट की जनरल नशिस्त अंदरून सिंध से ताल्लुक रखने वाले शख्स को देने का मुतालबा किया गया। अहदेदारों ने खबरदार किया कि फैसले पर नजरसानी न की गई तो बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी, कहा पार्टी बगावत ने इमरान खान के ओपन बैलेट के शोशे की कलई खोल दी। कहा इमरान साहब ये सब अपनी पार्टी का ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेनेट टिकट बेचने पर इमरान खान की अपनी जमात ने बगावत कर दी। पार्टी बगावत ने इमरान साहब के ओपन बैलेट के शोशे की कली खोल दी। उनका कहना था कि ओपन बैलेट का शोर इमरान साहब अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे। इमरान साहब ने दूसरे पर वोट की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया और अपना वीडियो स्कैंडल पकड़ा गया। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान साहब ने दूसरों पर इल्जाम लगाया और खुद गैस, बिजली और LNG चोरी में पकड़े गए। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का इल्जाम लगाया और इमरान साहब खुद फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़े गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि इमरान साहब जिस चीज का शोर करते हैं और नोटिस लेते हैं उसी में खुद चोर निकलते हैं। जिस दिन एम्पायर की उंगली हट गई, हकीकत सब पर आया हो जाएगी। अकबर एस बाबर ने खबरदार कर दिया, कहा इंसाफ के हसूल के लिए हर सतह पर जाऊंगा। पीटीआई के खिलाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग के मामले पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हुआ। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि पीटीआई की जानिब से शाह खावर इलेक्शन कमीशन में हाजिर हुए। डीजी ला अरशद खान के सुप्रीम कोर्ट में होने के बायस इजलास ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी का इजलास मंगल को दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि जब मैंने केस किया तो इमरान खान स्टे ऑर्डर के पीछे भागे। मैं इंसाफ के लिए उन्हें इदारों के पास जा सकता हूं। इमरान खान 6 साल से मुकाबले से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। पीटीआई सेक्रेटरी फाइनेंस ने फ्रंट अकाउंट्स तस्लीम किए। उन्होंने कबूल किया मिडिल ईस्ट से मुलाजमीन को पैसा आया। सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पार्लिमानी लीडर नून लीग ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकन असम्बली अली वजीर भी जेल में हैं। ज़राए के मुताबिक चारों अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर को दरखास्त दे दी गई है। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 मार्च को कौमी असम्बली हॉल में पोलिंग होगी
और 2 मार्च की शाम तक ज़ेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 12 फरवरी को नैयर बुखारी के मरासले में तारीखियों और दुरानिये पर मुश्किलात का इजहार किया गया था, जबकि 13 फरवरी को हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने भी ऐसी ही मुश्किलात इजहार किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी की गई। ताहम सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। गैर जरूरी बयानात से इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज और गैर जानिबदाराना हैसियत को मतनाज़ा बनाने से गुरेज किया जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एफसी चेक पोस्ट पर फायरिंग, दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही असद मेहदी शहीद। तर्जुमान ISPR के मुताबिक जिला कीच के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके को सील कर दिया गया है। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बलोचिस्तान के इलाके खुशाब में दहशतगर्दों की FC चेक पोस्ट पर फायरिंग, दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही असद मेहदी शहीद। तर्जुमान ISPR के मुताबिक जिला कीच के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, दहशतगर्दों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके को सील कर दिया गया। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जनवरी में बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र 2 अरब 27 करोड़ डॉलर रहे। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर में बयान किया है कि तरसीलात ज़र जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज्यादा है। मुसलसल 8 माह से तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर माहाना से ज्यादा है। उनका कहना था कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवां साल तरसीलात ज़र 24% ज्यादा है। ये मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड इजाफा है। उन्होंने कहा कि सनती शोबे में भी तरक्की हो रही है। दिसंबर 2019 के मुकाबले में पैदावार 11.4% इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 2 हीरे हिंद से की नमूद देखने में आई। सनती शोबे में भी खुशखबरी मुस्तहकम नमू की अक्कासी है। जुलाई 2020 से दिसंबर तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 8% इजाफा हुआ। यहां आपको बताएं कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल कितने रुपए महंगा होगा, वज़ीर आज़म आज हतमी फैसला करेंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। समरी में डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी की गई है। ज़राए के मुताबिक 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5.5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा की जानिब से इरसाल करदा समरी में लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज दी गई है। डीजल की कीमत में 14 रुपए 75 पैसे इजाफा तजवीज किया गया है। पेट्रोल की हालिया कीमत 112 रुपए फी लीटर है, जो इजाफे के बाद 128 रुपए हो जाएगी। डीजल 116 रुपए 7 पैसे महंगा होकर 130 रुपए 82 पैसे फी लीटर में मिलेगा। वजारत दाखिला ने वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। कलील मुद्दती वीजा को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुस्तस्ना कर दिया गया है। 30 रोज का मेडिकल और 3 माह का वर्क वीजा 48 घंटों में मिलेगा।
वफाकी वजारत दाखिला ने गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान के वीज़ा के अजरा के लिए अपनी पॉलिसीज में बड़ी तब्दीली की है, जिसके तहत कम मुद्दती वीज़ा को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। ताहम तवील मुद्दती वर्क वीज़ा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस और सरमायाकारी बोर्ड के लेटर समेत मुआहिदा मुलाजमात, सीवी, कंपनी लेटर, प्रोफाइल और SECP रजिस्ट्रेशन लाजमी दरकार होगी। नई पॉलिसी के मुताबिक 1 माह का मेडिकल और 3 माह का वर्क वीजा 48 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। 1 साल के मेडिकल वीजे के हसूल के लिए 30 रोज में सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाएगी। इसके अलावा हसूल तालीम के लिए पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की को 2 साल का वीजा जारी किया जाएगा। स्टडी वीजा के लिए सिक्योरिटी इदारों की क्लियरेंस और NOC पेश करना लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि शेख रशीद ने वजारत दाखिला का कलमबंदान संभालने के बाद अपने मातहत इदारों में बड़ी तब्दीलियों के ऐलानात किए थे और उन्होंने ऑनलाइन वीजा जारी करने का ऐलान भी किया था। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्शन प्लान के नुकात पर नुमाया पेशरफ्त कर ली। पाकिस्तान की रवां माह ग्रे लिस्ट से निकलने की राहें हमवार हो गईं। पाकिस्तान ने FATF के तमाम 27 नुकात पर वाज़ेह पेशरफ्त कर ली है। तमाम नुकात पर पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी गई है। ज़राए का कहना है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग में बड़ी पेशरफ्त की गई है। पाकिस्तान ने इन शोबों में कानून साजी मुकम्मल कर ली है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जा चुकी है। FATF का वर्चुअल प्लेनरी इजलास 22 फरवरी से शुरू होगा। FATF का जायजा इजलास 22 से 24 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान के इकदामात का जायजा लिया जाएगा। बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें, तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 26 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,333 हो गई। मजीद 1,048 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 5,25,000 अफराद सेहतियाब। 25,747 मरीज ज़ेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,048 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,64,268, सिंध में 2,53,762, खैबर पख्तूनख्वा में 59,990, बलूचिस्तान में 18,942, गलगित में 4,940, इस्लामाबाद में 42,688, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,487 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 84,66,117 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुराद रास ने सोशल मीडिया पर टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। जितने लोगों ने मुझसे मुलाकात की वो अपने कोरोना टेस्ट करवाएं, वज़ीर तालीम पंजाब की हदायत। अपडेट कर रहे हैं आपको कि वज़ीर तालीम पंजाब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुराद रास ने सोशल मीडिया पर टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। जितने लोगों ने मुझसे मुलाकात की वो अपने कोरोना टेस्ट करवाएं, वज़ीर तालीम पंजाब की हदायत। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि 65 साल और इससे जायद उम्र के शहरी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बुजुर्ग शहरी रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। 65 साल और जायद उम्र के शहरियों को वैक्सीन मार्च से लगना शुरू होगी। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 26 अफराद जाम हक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,333 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,64,077 हो गई। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन जल्द फराहम की जाएगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान को 1,70,00,000 डोज अप्रैल से कबल दी जाएंगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान को जून से कबल 10 मिलियन वैक्सीन मजीद फराहम की जाएंगी और यूं वैक्सीन से 80 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना से महफूज किया जाएगा।
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,11,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,53,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,97,000, ब्राजील में 2,29,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,74,000, रूस में 80,000, फ्रांस में 81,000, बरतानिया में 1,17,000 और सऊदी अरब में 6,443 अमवात। दुनिया में कोरोना के 8,14,71,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,53,54,000 से ज्यादा जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,97,174 अमवात हो चुकी हैं और 2,82,61,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,764 और 1,09,16,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाले अमवात की मजमूई तादाद 2,29,239 हो गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मुलाकात। कहते हैं पीडीएम सर्दी की वजह से नहीं बल्कि वैसे ही ठंडी हो गई है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का जमहूरी हक है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का जमहूरी हक है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में ओपन बैलेटिंग हो या खुफिया, जिसका जितना हिस्सा बनता है उससे मिलेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया है और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया है। लाचार पीडीएम दर बदर टक्करे मारती फिर रही है। फिरदौस आशिकाबान का दावा, कहा अवामी खिदमत और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब के मुआवने खसूसी फिरदौस आशिकाबान ने अपने ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने पसमानदा इलाकों की तरक्की का जो वादा किया उसकी तकमील के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बिला तफरीक तरक्याती मंसूबों का आगाज कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के दूर उफ्तादा मुकामात माड़ी कोहे सुलेमान और चोलिस्तान में बुनियादी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाकर सियाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुआवने खसूसी ने कहा कि सियाहत के फ़रोग़ से इलाके की किस्मत बदलेगी और मुकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साइट सीइंग बस सर्विस और चोलिस्तान जीप और बाइक रैली से इन दूर उफ्तादा इलाकों की तरफ सियाहती दिलचस्पी में मजीद इजाफा होगा। लाचार पीडीएम यूं ही दरबदर टकरे मारता रहेगा, जबकि हम अवाम खिदमत और तरक्की का सफर जारी रखेंगे। तो ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर सेनेट इलेक्शन को तहरीरी दरखास्त इरसाल कर दी। हलीम आदिल शेख की जानिब से दी गई दरखास्त के मतन में कहा गया है कि 14 फरवरी को वजीर आला ने नेशनल मीडिया के सामने सेनेट इंतखाबात में सिंध से वोटों से ज्यादा 10 सीटें हासिल करने का बयान दिया। दरखास्त में कहा गया कि वजीर आला सिंध इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सेनेट इंतखाबात में मुलविस हुए हैं। वोटों से ज्यादा सीटें हासिल करने का बयान देकर वजीर आला करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस साबित हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि वजीर आला ने सिंध से 10 सीटें हासिल करके वफाकी हुकूमत को सरप्राइज देने का एक बयान दिया था। वजीर आला सिंध को मेंबर सूबाई असम्बली की सीट से नाअहल करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आला का सेनेट इंतखाबात में वोटों से ज्यादा सीटें लेने का बयान एतराफे जुर्म है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि मुल्क में गुज़िश्ता साल 20,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। ट्विटर पर जारी बयान में अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सराहते हुए उन्हें पाकिस्तान में नई कंपनियों की आमद का क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों की हौसला अफजाई करते हैं कि SCCP की जानिब से कारोबार को बाकायदा कानूनी शक्ल देने की पेशकश का फायदा उठाएं। मुशीर तिजारत का कहना था कि 2018-19 के मुकाबले में रवा साल 2020 में पाकिस्तान में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में 54% इजाफा हुआ, जबकि जनवरी 2021 में
21 कंपनियां SCCP के साथ रजिस्टर हुई, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 12% ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान की EODB रैंकिंग में गैर मामूली बेहतरी आई है। हुकूमत का 18 महकमों की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला। 2,96,470 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% हेडॉक इजाफे से कौमी खजाने पर 21 अरब सालाना का इजाफी बोझ पड़ेगा। ऐवान सदर, वजीर आजम, सेक्रेटरीट, सेनेट और कौमी असम्बली के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। FBR, शोबा सेहत, नैब, आला अदलिया और विफाकी पुलिस के मुलाजमीन भी तनख्वाहों में इजाफे से महरूम रहेंगे। मोटरवे पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और FIA के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। इसी तरह लॉ एंड जस्टिस कमिश्नर, पार्लिमानी अफेयर डिवीजन और इस्लामाबाद मॉडल पुलिस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब 2,96,470 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का फैसला किया गया है। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% एहडॉक इजाफे से कौमी खजाने पर 21 अरब सालाने का इजाफा बोझ पड़ेगा। चाय पानी के नाम पर रिश्वत अब नहीं। पंजाब पुलिस का बड़ा पैगाम। कहा, रिश्वत लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब पुलिस की तरफ से जारी ट्विटर पैगाम में शहरियों से कहा गया है कि पुलिस एहलकारों की तरफ से चाय पानी के नाम पर रिश्वत को ना कह दें। चाय पानी के नाम पर पैसे मांगने वालों की 8787 पर बिला झिझक शिकायत करें, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक बहरिया की PNS कासिम अरोड़ा पर आलमी अमन मशकों का आखिरी सेशन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। 40 से जायद ममालिक के बहरी जहाजों, आबदोजों, ऑपरेशनल दस्तों की शिरकत। दहशत गर्दी से निमटने के लिए अमली मशकों का मुजाहिरा किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के फौजी बैंड ने कौमी और जंगी धुनें बजाकर समा बांध लिया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम PNS कासिम अरोड़ा पर आलमी अमन मशकों का आज आखिरी सेशन जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मेहमान खसूसी थे। 40 से ज़ायद ममालिक के बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के अब्रोज और मैरी टाइम की टीम्स भी मौजूद हैं। मशकों में हिस्सा लेने वाले ममालिक में चीन, सऊदी अरब, तुर्की, अमरीका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, डेनमार्क, जर्मनी, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, आज़रबाईजान, अर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, काज़ाकिस्तान, जनूबी बांग्लादेश, फ़लस्तीन, पोलैंड, कतर और जनूबी कोरिया शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।